finish this particular topic. Uh, we already discussed regarding the types of, not types of, what is innovation and what are the different importance of innovation, what are the attributes of innovation. So today we are going to start with the principles of innovation. यानी कि इनोवेशन किस बातों पे, किस सिद्धांत पे आधारित है. So among all the principles of innovation, if we are going to divide it in some points, then it will be better to understand by you. So that's why I want to discuss the principles of innovation with some particular points. Okay, so first point you can take, the analyze all the opportunities. If a businessman wants to innovate, if any person wants to make a new business, then it is necessary that there must be a systematic innovation, and this systematic innovation begins with the analysis of all the source of new opportunities. किसी भी businessman के लिए एक सिस्टमैटिक एनालिसिस, जितने भी न्यू सोर्स अपॉर्चुनिटीज है उसका एनालिसिस करके ही और शी कैन कम टू अ पर्टिकुलर डिसीजन दैट व्हाट टू मेक, व्हाट नॉट टू मेक एंड हाउ टू मेक. Okay, but for example, suppose change in our demographics may be a very little importance for the fundamental engineering industry. यानी कि एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, उसके लिए डेमोग्राफिक चेंज, यानी कि लोगों के ये बताइए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है हमारे देश में जितने भी लोग हैं, किस उम्र के लोग हैं, कितने क्वालिफाइड है, कैसे स्किल्डफुल है. तो अगर इसमें कुछ चेंज होता है, अगर लोगों की उम्र बढ़ जाती है, छोटे बच्चे बड़े हो गए, जो बड़े हैं वो ज्यादा और बुजुर्ग हो गए, पर इसका कोई भी असर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पे नहीं पड़ेगा. बट इफ अ कंपनी इज एसोसिएटेड विद द कंज्यूमर गुड्स, अगर कोई कंपनी कंज्यूमर गुड्स यानी रोजमर्रा की चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बनाने वाली कंपनी है, then there is a big impact on that business. So that's why entrepreneur should analyze all the opportunities and their relevance for the innovation. कितनी अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या अवसर है, और बिजनेस में उसका क्या रिलेवेंस है, उसका क्या योगदान है, इसको भी एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को देखने की जरूरत है. नाउ आई विल स्टार्ट विद द सेकंड पॉइंट. तो ये कहा जाता है कि वी ऑलवेज नीड टू यूज द बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन. एक्चुअली ब्रेन का दो पार्ट होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. some of the people they are active with the right side brain, and some of the people they are active with the left side brain. So both side active होना चाहिए. It means what? The person must be analytical and logical to identify the opportunities. ऐसा नहीं कि कोई भी अवसर लिया उसको ये सामान बना लेते हैं, वो सामान बना लेते हैं. It's not like that. तो उसको एनालाइज भी करना है, लॉजिकल भी चेक करना है, accumulate all the information, then think whether if all information is available, resources are there, if suppose material is also there, if suppose you can say the uh, production system is, can also be created, but then also there is chances that no market for that particular product. So that's why it is necessary that the both side brain must be active. So in this point we can say, और जो पीटर ड्रुकर जो कि एक्सपर्ट है मैनेजमेंट के, he told that the successful innovators use both side, right and left side of their brains. इसका मतलब है कि he or she need to check the expectations, values and needs while doing their study for the innovative ideas. One more point is very important here. The third point is entrepreneur must be a very simple and focused one. यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट मस्ट बी वेरी सिंपल एंड फोकस्ड. अगर आज की डेट में आप सबके हाथ में अगर मोबाइल फोन है, उसके साथ एक छोटा सा एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है, हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर मोबाइल फोन, दैट बिकम इजी फॉर यू. इफ सपोज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स गैजेट and you have to take a 2 months or 1 month or 1 week training to operate that, then it will be big difficult for everyone. So that's why the product must be very simple and focused. So innovative product should be simple and focused at the consumer needs. So actually
the masses at large should rapidly understand how to innovation works. यानी कि जितने लोग हैं अगर उनके हाथ में वो सामान आता है तो उनको पता चलना चाहिए कैसे वो इस्तेमाल होता है. If suppose the company is making a ready-made food, ये ready to cook food का मतलब ये है कि whatever be stuff is there inside of the packet, you have to just boil it. Your food is ready. तो ये एक सिंपल सी बात है. लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर कोई कंपनी ने कोई खाने का सामान बनाया है किसी पैकेट के अंदर में, बस उसको गर्म पानी में मिलाइए, आपका फूड रेडी हो जाएगा. सो इतना सिंपल होना चाहिए. अगर नहीं उनसे कहा जाए कि यू हैव टू open this packet, then do this, these are the steps, so people will not like those innovative products. Okay, so always it is also necessary for a businessman or for the entrepreneur to start small. Start small का मतलब ये होता है effective innovators always start with the small level, यानी कि छोटे लेवल में अपना काम शुरू करते हैं and then they build up and develop, and once they are established then they increase their scale of production. So they do not attempt a project on the large scale from the beginning. कोई भी entrepreneur किसी भी product को एक साथ बहुत सारा नहीं बनाते. Otherwise what will happen, suppose for any of the reason the people will not like that product and there is no demand from the society, then everything will waste. Then learn from the failure. It is also very necessary from the entrepreneurship part that actually whenever we are talking about the innovator, it means innovator, they are doing something new. क्या क्या न्यू हो सकता है मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ. फिर अभी जब हम लोग टाइप्स ऑफ इनोवेटर इसके बाद में डिस्कस करूंगी, अगेन आई ब्रश अप ऑल दोज पॉइंट्स. ओके, सो इनोवेटर डज नॉट गारंटी फॉर द सक्सेस. हमने नया सामान बनाया है, डेफिनेटली ये सक्सेसफुल रहेगा, ऐसा नहीं सोचा जा सकता है. ठीक है. Then innovator should be prepared to bear the loss of failure. इनोवेटर को अपने लॉस को बेयर करने की भी हिम्मत और क्षमता होनी चाहिए, so that he or she can try to learn from their failures. अगर कुछ गलती हो गई, प्रोडक्ट सफल नहीं हुआ, सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं सपोज दैट इज नॉट सक्सेसफुल, इन दैट केस ऑल्सो ये होना चाहिए कि द पर्सन मीन्स द एंटरप्रेन्योर, ही इज proposed to bear the loss, यानी कि he is also prepared to bear the loss bear करने की भी इसमें क्षमता होनी चाहिए. He should be ready for that. Then next is the work hard. Yeah, work hard means innovator should work hard. Innovator always need to work hard. When he or she is making some new company, some new product, some new services, so hard work is the must part of doing anything new. So after all, innovation is work. So rather than genius, so अच्छा, all the innovation work में मैंने बोला था work, innovator must work hard. So after all the innovation is work rather than genuine. ये हो सकता है कि एकदम genius से हो सकता है, अच्छा हो सकता है. Innovation as in any other endeavor, there is talent, there is ingenuity and there is knowledge. ये पीटर ड्रुकर ने कहा है कि जब भी कोई इनोवेशन होता है उसमें टैलेंट भी है, इंजेन्युइटी भी है और नॉलेज भी है. इट मीन्स and innovation is the collection of all these three. Now I'll come to the forms of the innovation. जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि earlier I have told you about there may be different forms of the production, but it is very important for your examination point of view. The question may come, what are the forms of innovation? तो बिल्कुल शॉर्ट में इसके बारे में बात करते हैं. एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, मैंने ऑलरेडी बोला था कि एंटरप्रेन्योर मीन्स any making of any new product, which for which
the consumers are not familiar, पहले से consumer को नहीं पता है about this product, okay? Or maybe if suppose they are making some product which is already in existing, so there must be in a new quality, new look, new shape, new quality. So introduction of the new product method means making a methodology of producing a product that can also comes under the category of innovation. किसी सामान को बनाने का जो process है, जो प्रक्रिया है, तो अगर वो भी चेंज हो तो उसको भी हम इनोवेशन की कैटेगरी में लाते हैं. Why? Because there is chance that due to this the there might be possibility that the cost of production may come down. Okay. Suppose the new production method is founded upon a discovery, so which is scientifically new one and exists in a new way of handling a commodity commercially, that then this comes under the category of innovation. Then third is the opening of the new market. अगर किसी कंपनी ने कोई सामान बहुत सारा बना दिया and this is not only possible to absorb all those goods and product into the state level, then they have to go for the national level. If suppose then still stock is there, then they have to go for the international level. So that's why selling the products into new market, exploring the new market, that also comes under the innovation or innovative idea. So opening of new market itself is considered as innovation. Then new source of supply of materials. ये मैंने पहले भी बोला था कि discovery of the new source of supply of materials for the semi-manufactured goods, these also deemed as the forms of innovation. Whether the source of raw materials are already existed and whether it has been created for the first time, that is immaterial. But if it is of the new source, a new type of material a business is using, that comes under the innovation. Lastly, पहले जब मैंने ये पॉइंट आपको शुरू में बताया था इनोवेशन में, दैट टाइम आई टोल्ड यू कि कोई पहले कंपनियां रेफ्रिजरेटर बनाती थी, दे यूज टू दे यूज फॉर देयर आउटर बॉडी, it is a steel, you can say steel sheet, but now the tough plastic sheet the companies are using, so that the cost of production must come down, यानी कि इसको बनाने के खर्च को कम किया जा सके. So carrying out the new forms of the organization, नए तरह का ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना, ये भी अपने आप में एक इनोवेशन है. न्यू टाइप ऑफ, पहले समय में ओला एंड उबर ये बिजनेस नहीं हुआ करते थे, ठीक है, जोमैटो ये बिजनेस नहीं हुआ करते थे. सो दीज आर द नॉवेल कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस. और इसके साथ साथ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए वेंचर, किस तरीके से बिजनेस काम करेगा, मीन्स क्रिएशन ऑफ द मोनोपोली पोजीशन एंड ब्रेकिंग दैट मोनोपोली पोजीशन इनटू द इंडस्ट्री, यानी कि एक ऐसा नया बिजनेस बनाया जाए कोई और नहीं बना रहा है, सिर्फ हम ही कर रहे हैं. सो दैट इज इन स्टार्टिंग, दैट इज द मोनोपोली. Then carrying out the new forms and opportunities of the organization. तो इस तरीके से ये सारे methods, ये सारे forms of innovation हो सकते थे. ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, मैंने जब थ्योरीज बताया था, एक थ्योरी मैंने छोड़ा था उस समय, मैं चाह रही थी उसको बाद में बात करूं, इसीलिए. तो एक थ्योरी थोड़ा सा आपको बताया था, बट नाउ today I'm going to give you in detail a theory of Schumpeter. Schumpeter एक expert है in the field of management. तो he propounded one particular innovative theory. तो as per his theory there must be some assumptions into the society. हमारे business environment है, हमारे society में कुछ assumptions होना चाहिए, यानी कि पहले से कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें ये थ्योरी फिट होगा, इनोवेशन की थ्योरी फिट होगी. तो कंप्यूटर्स की थ्योरी में innovation is based on some assumptions. What are those assumptions? That is important. So whenever theory comes, specifically if you need to write the assumption, the most popular theory of innovation, then it will be better for you to select the innovative theory given or propounded by the Schumpeter. तो Schumpeter ने ये बोला है कि एक ऐसे conditions जरूरी है हमारे इकोनॉमी में जिसमें कि
इनोवेशन पॉसिबल होगा, वो क्या एजम्पशंस है, अब मैं आपको वन बाय वन वो बता रही हूँ। द फर्स्ट एजम्पशन इज एग्जिस्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी, अगर इसको हिंदी में बोले, और मनी। मनी इज ऑलवेज अ लाइफ ब्लड ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ ब्लड क्यों मैंने बोला, हम सब अगर जिंदे हैं क्योंकि ब्लड है हमारे शरीर में, तो सेम वे बिजनेस के लिए भी ब्लड का होना जरूरी है। अब हम सब हैं, लाइव हैं, तो ब्लड की कोई क्वांटिटी है, सेम वे बिजनेस में भी over capital is not good and even the under capital is not good. So if suppose over capital is there, company need to revive the capital, यानी बहुत ज्यादा पैसे हो किसी बिजनेस में वो भी सही नहीं है, बहुत कम पैसे होंगे तो कंपनी भी बहुत स्मूथ तरीके से काम नहीं कर सकती है। तो एक adequate capital बिजनेस में होना चाहिए। and in any of the country the innovation is possible if there is existence of availability of capital। अगर हमारे पास कैपिटल है तभी हम इनोवेशन की बात कर सकते हैं। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज, नॉट मोस्ट, ऑल द कंपनीज आर हैविंग, especially manufacturing companies are having specifically a particular department known as research and development department। तो ये research and development department का काम है कि अपने प्रोडक्ट के हर डायमेंशन में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है देखें। तो ये प्रोडक्ट के डायमेंशन में मीन्स प्रोडक्ट की यूटिलिटी में, प्रोडक्ट के कॉस्ट में, प्रोडक्शन के सिस्टम में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, इवन मार्केटिंग में से एवरीवेयर वेर एवर पॉसिबल रिसर्च फॉर द इनोवेशन। तो एक R&D डिपार्टमेंट जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल नाम होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सभी कंपनियां आज की डेट में अपने पास ऑपरेट करती हैं। So next important point is there. So existence of the developed banking system is also needed into the economy. अगर किसी व्यक्ति के पास आइडियाज है, कुछ नया बना सकते हैं, but suppose the person is not having capital, but then also if in the economy, in the country, if there is developed banking system, then the person go to the bank, convince them about their idea and get their project finance from the बैंक। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कुछ नया ऐसी चीज बना सकता है जो सफल होगा, तो वो अपने आइडियाज को एक प्रपोजल के फॉर्म में बैंक के सामने पेश कर सकते हैं, और अगर बैंक कन्विंस हो जाए तो बैंक उनको फंड्स प्रोवाइड करती है। सो दैट्स व्हाई एग्जिस्टेंस ऑफ द डेवलप्ड बैंकिंग सिस्टम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इनोवेशन। अब थ्योरीज ऑफ इनोवेशन जो एक और बात पे डिपेंड करता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए हाई लेवल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। तो इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि किसी देश में हाई लेवल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत हो। इफ इनोवेशन इज ऑल्सो पॉसिबल विद द इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, बट क्या होता है कि हम लोग सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज करें या हाई लेवल टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो वही चीजें कम दाम में बनकर तैयार होती हैं। अगर कम दाम का मतलब है कम कॉस्ट में बनकर तैयार होती हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द पीपल इन अ चीपर रेट्स। That existence of private initiatives are also important in any of the society। यानी कुछ प्राइवेट प्लेयर्स होने चाहिए जो कि इनोवेटर्स को मदद करे, जैसे भी मदद चाहे वो वैसे उनको मदद कर पाए। मे बी उनको फंड्स प्रोवाइड करे, मे बी एक्सपर्टाइजनेस प्रोवाइड करे, या फिर यू कैन से कि मैनेजरियल एक्सपर्टाइजेशन प्रोवाइड करे। सो and existence of the broad entrepreneurial process। देश में उद्यमिता का जो प्रोसेस है वो बहुत ही वृहद रूप में होना जरूरी है। तो all these are the assumptions which is given by the Schumpeter, and it clearly indicates that applicability of the theory is practical in a developed economy। लेकिन जो डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, इसमें हम पूरी तरीके से ये सारी बातों को फिट नहीं पाते। वाई? बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द हाई लेवल टेक्नोलॉजी ऑलवेज रेडी फॉर ईच एंड एवरी organization। So that's why some limitations are also given। But now the most important part,
of this whole innovation chapter. There is a distinction between innovator and inventor. ये distinction मैंने पहले भी बताया था. मैंने ये बताया था कि इन्वेंटर का मतलब होता है बिल्कुल ऐसी नई चीज बनाना जो पहले बनी ही नहीं हो, और इनोवेटर का मतलब है नई चीज भी बना सकते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसको और ज्यादा उसमें एडिशन करेंगे. ठीक है, अब हम लोग स्टेजेस ऑफ इनोवेशन या क्रिएटिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. इसके साथ समझो कि मैंने यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया, बट सिंस हमारे पास थोड़ा सा टाइम और है तो मैं एक और दूसरा टॉपिक जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगी. नेक्स्ट कम्स फॉर द क्रिएटिविटी, एंड क्रिएटिविटी इज द, यू कैन से द बेस फॉर द इनोवेशन. क्रिएटिविटी को हम इनोवेशन का बेस मानते हैं. जैसे क्रिएटिविटी का प्रोसेस कैसे शुरू होता है, आप कोई चीज नया आप बनाना चाहते हैं तो इट्स नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी जनरेशन ऑफ आइडिया, यानी कि आइडिया का जर्मिनेशन होना चाहिए, आइडिया की शुरुआत होनी चाहिए. तो आइडिया की शुरुआत इट कैन बी डन. आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो पता चलेगा कि हाँ, अरे हाँ, ये नई बात है, इसको किया जा सकता है. जैसे ओला एंड उबर ने अगर वो बिजनेस स्टार्ट किया था तो उनको ये पता था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टैक्सी की बस में नहीं जाना चाहते, टैक्सी की सुविधा चाहिए और उनके पास वो अपनी गाड़ी भी नहीं है. तो ये जो गैप है उसको फिलफिल करने के लिए सबसे पहले उन्होंने बड़े शहरों में इसका इस्तेमाल शुरू किया. एंड नाउ दिस इज अ सक्सेसफुल बिजनेस. आई मस्ट से दिस इज अ सक्सेसफुल बिजनेस. देन नेक्स्ट है, अगर आइडिया आपको मिल गया देन ऑल्सो यू नीड टू थिंक अबाउट द प्रिपरेशन. प्रिपरेशन मीन्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टेज a person is going to or depends on the research and conscious research for bringing the idea to the life. सिर्फ आइडिया कर लेंगे हम ये चीज बना सकते हैं, that is not sufficient. उसको हम किस तरीके से धरातल पे लेके आएंगे, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट प्रोसेस. एंड अ क्रिएटिव पर्सन बिकम्स प्रिपेयर्ड बाय गैदरिंग इंफॉर्मेशन about what can be the problems, how other have tried it and resolved it. So idea, it can be relates to a new product. The creativity person they can also research for the market. मैंने शुरू में ही बताया था कि सामान बनकर तैयार हो जाता है, बट हो सकता है कि मार्केट में वो सामान अभी तक नहीं पहुंचा है. ठीक. नेक्स्ट कम्स फॉर द इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझा जाता है फॉर द आइडिएशन टू द इम्प्लीमेंटेशन. ये इंक्यूबेशन क्या है मैं आपको ये बताती हूँ, और बहुत सारी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में या दूसरे तरीके से भी सरकार ने भी इंक्यूबेशन की व्यवस्था की है. अच्छा, इंक्यूबेशन का मतलब ये है कि एक्चुअली अ पर्सन स्लीप्स ऑन द प्रॉब्लम, यानी कि मतलब ये है कि उसने आइडिया दे दिया एंड नाउ ही वांट द आइडिया टू ग्रो. तो अगर ये आइडिया अगर एक सब कॉन्शियस माइंड में है सपोज, तो आपको अगर कॉन्शियसली वर्क करना है तो इट इज नेसेसरी दैट कि आपको उससे होने वाले जितने प्रॉब्लम होंगे उसको भी सॉल्व करने के लिए सोचना पड़ेगा. तो इंक्यूबेशन इज द प्रोसेस वेयर एक्चुअली a person is going to check what is the essence of making of any particular product. Next comes for the illumination. Illumination का मतलब ये हुआ कि idea always surfaces through the incubation. Incubation में एक आइडिया को किस तरीके से फुलफिल किया जाए, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में सारे स्टेप्स का डिस्कशन और सारे स्टेप्स को एक्चुअली यूज करने की बात आती है. द इल्यूमिनेशन, दिस इज अ क्रिटिकल स्टेज वेयर entrepreneurs because idea until or unless they turn into the realistic creation, there is no meaning, and even they may not be able to know what are the problems creep up with the production of this new product. Okay, so
जब तक वो सामान बनकर तैयार नहीं हो जाए तब तक उस सामान के बनने के प्रोसेस में जो जो समस्या, जो जो प्रॉब्लम्स आए वो नहीं पता चलेगा. वी कैन ओनली इमेजिन दैट कि ये हो सकता है, इससे बचना चाहिए, बट ये नहीं पता चल पाएगा. सो दैट्स व्हाई illumination stage is important, and in the illumination stage it separates. ये सिर्फ जो सोचते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे उनको, और जो वाकई में कोई सामान बना करके सोसाइटी में देते हैं, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस बताता है. तो एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट इज एसेंशियल टू ट्रांसलेट एन illuminated idea into a verified, realistic and useful application. तो अब जो इल्यूमिनेशन के बाद जो आइडिया कंप्लीट होके आएगा उसको वेरीफाइड यानी वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, उसको रियलिस्टिक, रियल में वो एप्लीकेबल है या नहीं ये भी चेक होना चाहिए, और उसका यूजफुल एप्लीकेशन भी जाना चाहिए. तो दैट्स व्हाई verification is the development stage of putting the knowledge into application. अब जो भी आइडिया था, जो भी उससे रिलेटेड नॉलेज थी, उसको एप्लीकेशन में डाला जाना, यानी कि एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट किया जाना, दैट कम्स अंडर द यू कैन से in the application. So during this stage many ideas are rejected because either they are impossible and have little value. कभी कभी बहुत सारे आइडियाज रिजेक्ट भी किए जाते हैं क्योंकि वो इम्पॉसिबल होते हैं. उसको हेलो हेलो तो उनको इम्पॉसिबल वो होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाना. ठीक है. सो इसके साथ आपका इनोवेशन, क्रिएटिविटी ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट हो जाता है. नाउ since half an hour left, so we are going to discuss about the ethics and ethical value. बिजनेस में इथिक्स का क्या मतलब है, इथिकल वैल्यू क्या होता है. जब भी हम इथिक्स की बात करते हैं, सिंपल में अगर बोले कि इथिक्स का क्या मीनिंग है, ये नया टॉपिक मैं शुरू कर रही हूँ. सो इथिक्स को डिफाइन किया जा सकता है एज एन इंडिविजुअल्स पर्सनल बिलीफ अबाउट वेदर a behavior, action or decision is right or wrong. हमारा कोई एक्शन राइट है और रॉन्ग है, वही इथिक्स के अंदर आता है. अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो इथिक्स इज इट इज अ डिसिप्लिन दैट डिफाइंस व्हाट इज गुड और बैड और व्हाट इज मॉरली राइट और रॉन्ग. और आज की डेट में एक पर्सन के लिए इथिकल होना जितना इंपॉर्टेंट है, सेम वे बिजनेसमैन और द बिजनेस बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, द बिजनेस शुड आल्सो बी एन इथिकल business should also be ethical. The concept of the ethics जो है वो we can study here as a managerial ethics and a management ethics. Okay. There may be three types of ethics from the business point of view. It may be personal ethics and accounting ethics and the business ethics. Personal ethics का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया. It totally depends on the individual's personal life. अगर आप झूठ बोलते हैं इसका मतलब है अनइथिकल आपका बिहेवियर है. आप गलत काम करते हैं, अनइथिकल आपका नेचर है. इसी तरीके से राइट और रॉन्ग यही हमारे लाइफ में इथिक्स को परिभाषित कर रहा है. क्या तो हम सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं. सो वेरियस फैक्टर्स आर देयर विच गवर्न द पर्सनल इथिक्स. It may be the family influence, it may be the life experience, it may be the poor influences, personal values and morals and the situational factors. बहुत सारी बातों पर ethics डिपेंड करता है. Now come for the accounting ethics. अब हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं. So how do professionally qualified accountants prepare and maintain their accounts, and what guides their professional conduct is determined by the accounting ethics. जो किसी भी बिजनेस में उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, लेन देन होंगे, जाहिर है उन सब का अकाउंटिंग रिकॉर्ड रखा जाता है. तो जो प्रोफेशनल ये काम करते हैं तो एक्चुअली दे आर द क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स एंड दे डू दिस
और some guides are there for their professional conduct कि वो बिल्कुल सही तरीके से अकाउंट मेंटेन करेंगे। आपने जो लोग कॉमर्स के हैं, दे नो, जब भी हम कॉमर्स की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो फर्स्ट डे वाई डिस्कसिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग यही पढ़ाया या बताया जाता है कि किसी भी बिजनेस को अपने अकाउंट्स को इसलिए मेंटेन करना है सो दैट द ट्रू एंड फेयर पोजीशन कैन बी नोन, यानी कि अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि ट्रू एंड फेयर, ट्रू का मतलब बिल्कुल सही पोजीशन पता चलना चाहिए। जहां 10,000 खर्च किए वहां 10,000 ही लिखिए, 12,000 मत लिखिए, यानी कि मैनिपुलेशंस को हटाइए। फेयर का मतलब ये है कि सिद्धांत के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन लिखी जानी चाहिए। फिर नेक्स्ट कम्स फॉर द बिजनेस एथिक्स। सो बिजनेस एथिक्स actually to what degree truth and justice does a business enterprise, and to what extent they carry their activities, what is the degree of interaction between the business enterprise and the different sections of the societies. Here different sections of the societies means it may be consumer, it may be supplier, it may be government, so that is to be determined by the ethics. तो एक बिजनेसमैन पूरी सोसाइटी के साथ जैसा अपना बिहेवियर रखता है उसको हम लोग मॉरल या सही शब्दों में एथिक्स बोलते हैं। तो बिजनेस एथिक्स को ही हम लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस एथिक्स का मतलब है द वे द बिजनेस रन्स एंड कैरीज ऑन इट्स ऑपरेशन। जिस तरीके से बिजनेस चल रहा है, अपने बिजनेस को कैरी कर रहा, अपने ऑपरेशंस को कैरी कर रहा, सो इट डिटरमिन्स द स्टैंडर्ड बिहेवियर दैट गाइड्स द इंडिविजुअल एंड मैनेजर्स टू फॉर देयर वर्क। जैसे सम एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ एथिक्स का। बिजनेस एथिक्स में क्या क्या आ सकते हैं? टू रियलाइज द रीजनेबल प्राइस फ्रॉम द कस्टमर्स एंड प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स। किसी बिजनेस का ये एथिकल पार्ट होगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर देना, उनसे एक रीजनेबल प्राइस लेना प्रोडक्ट का। ऐसा नहीं कि सामान आपने 10 रुपए में बनाया है एंड यू आर चार्जिंग फ्रॉम द कस्टमर 100 रुपीज, इट मीन्स 9 times मोर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड नॉट टू अडॉप्ट द अडल्टरेशन, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द बिजनेस एथिक्स, यानी कि या तो रॉ मटेरियल हो या कोई भी सामान बन रही हो उसमें एडल्टरेशन यानी मिलावट नहीं होनी चाहिए। And not to sell the duplicate goods. This also comes under the part of the business ethics. कंपनियों को डुप्लीकेट सामान बना करके बेचना नहीं चाहिए, but then also we may find in society in some of the market duplicate goods are also available. So ये थोड़ा बिल्कुल अलग बात है। हम लोग सिर्फ इथिकल चैप्टर के बारे में, इथिकल पार्ट के बारे में बात करें तो जो नहीं होना चाहिए सिर्फ वही कहेंगे, ठीक है। Good human behavior with employees, this also comes under the ethics. Okay, 1 मिनट का ब्रेक दो। Then अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को उनकी जो सैलरी है समय पे नहीं दे रही है, उनसे रिक्वायर्ड जो सरकार ने जो नियम बनाया है या पहले से जो कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के साथ तय किया है उससे ज्यादा समय तक उनसे काम करवा रही है, उनको समय पे सैलरी नहीं दे रही है, उनको कम पैसे दे रही है, उनके वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं प्रोवाइड कर रही, तो ऑल दिस कम्स अंडर द अनएथिकल बिहेवियर और अनएथिकल पार्ट ऑफ द organization. So good human behavior with the employees, that also comes under the ethical practices of the organization. एक और ethical practice मैं बता रही हूँ, किसी भी कंपनी के लिए जरूरी है कि must pay income tax honestly. देखिए जिस तरीके से हम इंडिविजुअल पीपल अपने इनकम के ऊपर टैक्स पे करते हैं सरकार को, सेम वे कंपनियों को भी अपने प्रॉफिट के जितना प्रॉफिट उनको हुआ है उस पर टैक्स पे करना पड़ता है। बट मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां, मैं सभी कंपनियों के बारे में नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर, दे मैनिपुलेट देयर
अकाउंट्स, तो अगर मान लो ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मैनिपुलेट करके अकाउंट्स को बना रहे हैं अगर वो लोग, तो कम प्रॉफिट दिखाई देता है तो कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये मैनिपुलेशन को रोकना, दिस इज इंपॉर्टेंट। कई बार आप मार्केट जाते हैं, सामान खरीदा एंड यू आर नॉट डिमांडिंग रिसीट फॉर दैट। अगर आपने रिसीट नहीं लिया, देन शॉपकीपर के लिए ये हो सकता है कि नॉट टू डिस्क्लोज दैट। अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया वो सेल हुआ है, तो उसका सेल भी नहीं दिखाई देगा, प्रॉफिट भी नहीं दिखाई देगा, उसको टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। तो आजकल इन्हीं सारी चीजों को ठीक करने के लिए जो नया प्रैक्टिस सरकार ने शुरू किया है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रूप में, दैट इज इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर सामान उनके दुकान में आता है, देन ऑल्सो दिस मस्ट बी रिकॉर्डेड, और वो सामान बेचते हैं, दैट ऑल्सो दिस मस्ट बी रिकॉर्डेड। और अगर इन दोनों के बीच में जो गैप है, सो दैट इज शोइंग कि उतना सामान उनकी दुकान में होना चाहिए। अगर स्टिल देयर इज अ मिसमैच, इट मीन्स द पर्सन इज नॉट ऑपरेटिंग करेक्टली। सो एंड इट्स गुड प्रैक्टिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टू पे इनकम टैक्स ऑनेस्टली, this also comes under the business ethics. Then to maintain the healthy competition with the competitors, this is also healthy, this is also ethics. See why, मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। मान लीजिए हम पूरे मार्केट को 100% मानते हैं, हाँ 100%, और उसमें सिर्फ एक ही कंपनी काम कर रही है, तो इसका मतलब है पूरा 100% बिजनेस उसी कंपनी का है। इसी बीच एक दूसरी कंपनी ने भी अपना काम शुरू किया। अब जब दूसरी कंपनी ने काम शुरू किया तो कुछ लोग तो उस दूसरी कंपनी का सामान खरीदेंगे। मान लीजिए कि 20% लोगों ने दूसरी कंपनी का सामान खरीदना शुरू किया। नाउ द टोटल मार्केट इज डिवाइडेड बिटवीन दीज टू एज 80% एंड 20%। मैंने पहले कहा था कि 100% मार्केट है, समझो एक ही व्यक्ति के पास। अभी दूसरी कंपनी भी आती है तो कुछ लोग उसका सामान भी खरीदेंगे, तो अब 20% मार्केट उनके पास हो गया। अब कोई और भी कंपनी आती है तो उसके पास भी अगर कुछ कस्टमर चले गए, मान लीजिए द थर्ड कंपनी सी के पास 5% कस्टमर चले गए। अब यानी कि सोसाइटी में या मार्केट में 3 कंपनीज आते हैं, ए बी एंड सी। ए के पास है, अब मैंने शुरू में बोला था 80% और बी के पास है 20%। जब सी आती है, सी को 5% मार्केट मिलता है, तो या तो वो थोड़ा बहुत ए का मार्केट खत्म होगा या बी का मार्केट खत्म होगा। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ए का 3% सी के पास चला गया और बी का 2% सी के पास चला गया, तभी आप ये कह सकते हैं कि सी को इतने परसेंट मिल पाएंगे, 5%। अब बड़ी कंपनियां कभी कभी क्या करती हैं, छोटी कंपनियों को अपने रास्ते से पूरी तरीके से हटाने के लिए अपने सामान का दाम बहुत कम कर देती है, और इतना सामान का अपना दाम प्राइस कम कर देती है कि स्मॉल कंपनी may not be able to survive into that competition. So this competition is known in the business term as a cutthroat competition. हिंदी में इसको गला घोंटू प्रतियोगिता बोलते हैं, यानी कि छोटे बिजनेस को अपने बिजनेस को बंद करके बाहर जाना पड़ता है। सो दिस काइंड और दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस आल्सो कम्स अंडर द अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो ये बिजनेस में एथिक्स का मतलब है टू मेंटेन द हेल्दी कंपटीशन विद द कॉम्पिटिटर्स एंड द प्रॉम्प्ट पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो आपको मैं एक ये बात बता रही हूँ, क्रेडिटर्स और डेटर्स का क्या मतलब है। You are going to enjoy this also, especially who are not from the commerce background. जब कोई कंपनी कोई सामान बनाती है ना, अगर उसको उधार में बेचती है, तो ये कहा जाता है कि बिजनेस में जिन लोगों को उधार में बेचा गया उनकी रिकॉर्ड डेटर्स के रूप में रखेंगे, यानी कि वो हमारे देनदार हैं, ठीक। और जिससे अगर मान लो मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने सामान बनाया, तो सामान बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, तो मैं रॉ मटेरियल उधार में लेकर आती हूँ, तो मेरे पास मैं उनकी रिकॉर्डिंग करती हूँ कि वो मेरे लेनदार है, ओके। और जिनको मैंने उधार में बेचा है वो मेरे लिए देनदार है। तो कंपनी अपनी पॉलिसी ऐसे बनाती है अक्सर कि जो हमारे क्रेडिटर्स है, टू whom I have to pay, so I'll make my policy so liberal so that जितना हो सके देर से हम पे करें।
And for the debtors policy, the companies are making so strong debtor policy that as much as possible the speedy recovery become as much as speedy recovery may become possible. यानी कि जिनसे लेना है स्पीडली उनसे पैसा ले लो, लेकिन जिनको देना है उसको धीरे धीरे करके दो. तो ये प्रोसेस, ये जो है अनएथिकल प्रैक्टिसेस कहलाता है. इसीलिए कहा गया कि देयर मस्ट बी प्रॉम्प्ट पेमेंट टू क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स जहां से आप रॉ मटेरियल्स लेकर के आते हैं उनको भी सही समय पे पे कर दिया जाए. तो गिव रीजनेबल रिटर्न टू शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स को भी रीजनेबल रिटर्न दे. शेयर होल्डर्स कौन है मैं आपको अब पहले बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे आर्ट्स और साइंस के भी स्टूडेंट्स हैं इसमें. तो जब किसी कंपनी को जो पैसों की जरूरत होती है बिजनेस चलाने के लिए, तो दैट एंटायर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच स्मॉल पार्ट इज नोन एज शेयर. कंपनी की पूरी पूंजी, जो कैपिटल उसको चाहिए, जो पूंजी चाहिए, जो पैसे चाहिए, उसको छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है. उसको कहते हैं शेयर. और लोगों से कहा जाता है कि आप इन शेयरों को खरीदिए. अगर किसी टाटा स्टील का, अगर मान लीजिए 100 करोड़ का बिजनेस है, उसका कैपिटल है, तो ये बहुत सारे लोगों में 100 करोड़ का उनका कैपिटल है, मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, और ये 100 करोड़ 10-10 रुपए के शेयर में बटा हुआ है. जिनको चाहिए वो उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं. ये शुरुआत की बात थी जब कंपनी बनी थी. आज आपको खरीदना होगा तो यू हैव टू गो टू शेयर मार्केट. और शेयर मार्केट में आज के दिन में इस कंपनी का 10 रुपए का शेयर 300 या 400 रुपए के बीच में मिल रहा होगा. तो जब कंपनी की शुरुआत होती है तो जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं शेयर के रूप में कंपनी में, ये जरूरी है कि दे मस्ट बी गिवन सम रिटर्न ऑन देयर कंट्रीब्यूशन. तो इसे ही कहा जाता है टू गिव द रीजनेबल रिटर्न टू शेयर होल्डर्स. अगर मैंने किसी कंपनी में पैसे लगाए और कंपनी ने मुझे डिविडेंड रिटर्न के रूप में, इसको डिविडेंड कहा जाता है कॉमर्स की भाषा में, कि अगर कंपनी ने मुझे डिविडेंड नहीं दिया तो व्हाट विल आई डू. मैं तुरंत उस कंपनी से पैसे निकाल के दूसरे कंपनी में डाल दूंगी जहां मुझे अच्छा डिविडेंड मिलेगा, बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न मनी. क्योंकि अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है और मैंने कहीं उस पैसे को लगाया है, तो इसलिए लगाया है कि उस पैसे में ग्रोथ हो, वो पैसा बढ़े. न कि अगर मैंने किसी को 10,000 रुपए किसी बिजनेस में लगाए हैं तो आज से 10 साल के बाद भी वो 10,000 ही रुपए ही रहे. Not for that purpose. So that's why it is necessary that the reasonable return must be provided by the organization or company to the shareholders. Next is to keep the safe environment. Environment और safe environment ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि एम्प्लॉइज का हेल्थ भी दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है एक हजार्डस एनवायरनमेंट में, यानी कि हजार्डस का मतलब हुआ, मैं हिंदी शब्द याद नहीं आ रहा है मुझे, यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जिसमें उसको जख्मी होने के चांसेस है, तो डेंजरस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, जैसे केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, तो इट इज नेसेसरी दैट दे मस्ट बी प्रोवाइडेड सम सेफ्टी इक्विपमेंट. एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. थोड़े दिनों पहले जब पैंडेमिक का समय था, आप सबने टीवी में देखा होगा कि उस समय जो डॉक्टर्स, जो नर्सेस, जो हेल्थ वर्कर्स काम किया करते थे विद कोरोना पेशेंट्स, सो दे वेर गिवन द अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ड्रेस. ठीक है, उनको वो पूरे प्लास्टिक का जो पूरा सूट दिया गया था जिससे कि वो अपने आप को बचाते हुए उनके साथ काम कर सके. सो दैट इज नोन एज अ कीपिंग द सेफ एनवायरमेंट. तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने बताया. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में ये एनवायरमेंट होता है. तो हर, अभी सपोज यू आर वर्किंग इन अ ऑफिस, मैं फैक्ट्री की बात नहीं कर, मैं ऑफिस में ही बात करूँ, और बहुत गर्मी का दिन है, मई का महीना है मान लीजिए, फर्स्ट वीक ऑफ द मे, और वहाँ एक फैन भी ना हो, तो कैन यू सिट देयर मोर देन 5 मिनट्स? नो, नॉट एट ऑल. आप कंफर्टेबली वहाँ काम नहीं कर सकते. तो दैट्स वाई in an office, in a working environment, in a factory, everywhere, safe environment is important. Safe and healthy environment, and not to suppress the employees. This is also important point. Suppress का मतलब होता है शोषण करना. तो किसी भी कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉय
का शोषण नहीं किया जाना चाहिए, नॉट टू सप्रेस द एम्प्लॉयज और एक्सप्लॉइट द एम्प्लॉयज। एक्सप्लॉइटेशन का ये दूसरा शब्द है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज से काम कराती है, उनको सैलरी नहीं देती है, प्रॉपर सैलरी नहीं देती है, सही सैलरी नहीं देती, इसका मतलब है वो उनका शोषण कर रही है। उनको 50,000 रुपए देने चाहिए, सिर्फ 25,000 रुपए देती है, यानी कि शोषण करती है। ओके, सो दीज आर द अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑन पार्ट ऑफ द बिजनेस। और एक लास्ट पॉइंट में बोलती हूँ, नॉट टू यूज अनएथिकल एडवर्टीजमेंट, यानी गलत एडवर्टीजमेंट भी कंपनियों को यूज नहीं करना चाहिए। अनएथिकल एडवर्टीजमेंट भी यूज नहीं करना चाहिए, यानी कंपनी को अपने दावा नहीं करने चाहिए अपने किसी पार्ट में, अपने किसी प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनियां कर रही है ना कि आप इस प्रोडक्ट को लगाइए तो एकदम गोरे हो जाएंगे, आप इस प्रोडक्ट को लगाइए, सर में बाल नहीं है, आज प्रोडक्ट को लगाइए तो सर में बाल उगाएंगे। तो ये सारा यानी कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस है। तो हमारे देश में एक्चुअली ये कहा जाए तो ये जो जुडिशियल सिस्टम है दैट इज नॉट अ वेरी स्पीडी सिस्टम, बट अमेरिका और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में होता ये है कि अगर किसी व्यक्ति एडवर्टीजमेंट में कुछ लिखा गया एंड द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड, दे कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट। ओके, एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। एक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी ने एक दावा ये किया कि इस कफ सिरप को इस्तेमाल कीजिए, एक दिन में खांसी ठीक हो जाएगा। तो ये जब कभी लॉ पढ़ाने का मौका मिलेगा देन डिटेल में मैं आपसे बात करूंगी। तो अमेरिका में एक लेडी ने उसको इस्तेमाल किया क्योंकि कफ सिरप के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था, बट शी वॉज नॉट क्योर्ड एंड शी फाइल्ड अ केस, और कंपनी ने उसको कंपनसेशन दिया, कंपनी ने उसकी क्षतिपूर्ति की। तो ये दूसरे देशों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। हमारे देशों में हम डेली बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट देखते हैं और देखकर चुप भी रह जाते हैं, विच इज इन प्रैक्टिस इट्स नॉट करेक्ट। अब आज के दिन में कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट होता है, आप सभी ने कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट देखा है। तो कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टीजमेंट, डू यू थिंक दैट इज करेक्ट? नो, इट्स नॉट करेक्ट। व्हेन यू आर थर्स्टी, having a cold drink, that is not substitute of a cold water. Okay, so this is totally wrong. But since it's a business, we are society, and we are not having time to file suit to that particular company. अगर मैं चाहूँ कि किसी में कंपनी पे सूट फाइल करूँ तो मेरा समय भी नष्ट होगा, मेरे पैसे भी नष्ट होंगे, तो क्या होगा, तो मैं चुप रह जाती। बट सेम वे कंपनी के पार्ट से कहा जाता है कि कंपनी शुड नॉट यूज अनएथिकल एडवर्टीजमेंट। जो उनका प्रोडक्ट नहीं है वो वैसा प्रोडक्ट अपना ना बताएं और ये झूठ बोल करके एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट को ना बेचें। तो ये सारा एग्जाम्पल्स था बिजनेस इथिक्स का। और ओनली 2-3 मिनट्स लेफ्ट। तो बहुत सारे बिजनेस इथिक्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं which is going to affect the business ethics, like legal concerns, government regulations. सरकार ने बहुत सारे रेगुलेशन बनाए हैं to stop the unethical practices by the company or by the organization. ठीक है, हर प्रोफेशन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। जो वकील है उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, जो अकाउंटेंट है कोड ऑफ कंडक्ट है, डॉक्टर से कोड ऑफ कंडक्ट है, बिजनेस मैनेजर पीपल है उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। तो सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है। तो इंडस्ट्री और कंपनी के लिए भी इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, बट द थिंग इज they all need to commonly practice this and the social pressure should also be there. हमारे समाज में एक ऐसा प्रेशर बनना भी चाहिए कि कोई भी कंपनी गलत सामान बनाकर या गलत बोलकर अपनी चीजों को न बेचे, बिकॉज बीइंग यू आर कस्टमर्स आर द किंग। अगर किसी कंपनी ने कोई सामान को गलत बताया, आपके पास एक रास्ता है कि डोंट बाय दैट। इन दिस वे वी कैन मेक अ सोशल प्रेशर ऑन द कंपनीज टू ऑलवेज प्रोवाइड बेटर क्वालिटी गुड्स। कंप्लीट हो जाता है।
still 2-3 minutes left with you. अच्छा, अब मैं बता 2-3 मिनट जो बचे हैं उसमें मैं ये बात करती हूँ कि बिजनेस इथिक्स का क्या फायदा है। हम लोग बिजनेस इथिक्स के बारे में इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो इसका फायदा एम्प्लॉइज को ये है कि एम्प्लॉइज विल गेट and employees workers know their right with respect to the wages, with working hours, working conditions, and can get results in the extraction of the same from the business firm through implementation of formal code of conduct. यानी एम्प्लॉइज को बिजनेस से रिलेटेड जहां वो काम करते हैं सारी बातें पता रहती हैं. ओके, देन नेक्स्ट कंज्यूमर्स को ये फायदा होगा कि कंज्यूमर विल गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट दैट इज ऑल्सो एट राइट टाइम, एट राइट प्लेस एंड एट राइट प्राइसेस. ओके, एंड जितने भी मेल प्रैक्टिसेस है like hoarding, black marketing, so all these can be as much as possible controlled through ethical practices by the company. और मैनेजमेंट को ये फायदा होता है कि मैनेजमेंट कैन ऑनेस्टली एंड फेथफुली रन देयर बिजनेसेस. इंडस्ट्री को ये फायदा, इंडस्ट्री का मतलब है सेट ऑफ कंपनीज, यानी एक अगर हम स्टील इंडस्ट्री बोलते हैं तो जितनी स्टील बनाने वाली कंपनी है सभी उसमें शामिल हो जाती है. तो ग्रुप ऑफ कंपनीज को इंडस्ट्री बोला जाता है जो एक जैसा काम कर रही हैं. तो बेनिफिट्स, इंडस्ट्री को ये बेनिफिट होता है कि जो कंपनियों को बेनिफिट होगा वो उस इंडस्ट्री को भी बेनिफिट होगा. तो इंडस्ट्री में मैंने कहा दीज आर द ग्रुप ऑफ द कंपनीज एंड द फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द ethics provide for a healthy competition and protection of each other's interest also into the industry. सोसाइटी को ये फायदा होगा कि ये सारी बातें ethical practices that will reflect the benefit to the society and the business being a product of the society, served to society in a satisfactory manner, which is also the need of the society. So social acceptance that justifies the existence of a business. अगर कोई बिजनेस बहुत अच्छा है तभी वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है और यही उसके एग्जिस्ट होने का एक बहुत बड़ा पैमाना है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन. From the next class, other teacher will take because I have completed all the unit 1. Okay.